انسان کے اچھے وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، انسان کا وقت جب بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس انسان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحابہ کرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ، انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے، آپ کا مقدر سنورنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ یہ پریشانیاں اور دکھ درد، اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال،
रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से क्यों मारा जाता है? तुम्हें इतनी मुसीबतें क्यों दी जाती हैं? इस पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, ऐ शख्स, तुमने कभी बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदा है? उसने कहा हाँ। तो आपने फरमाया, बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले इन्हें बजा बजा कर देखते हो, कहीं से कमज़ोर और टूटा हुआ ना हो। इसी तरह से मेरे रब ने मुझे आजमाया था और मैं अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइशों पर पूरा उतरा और अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे ये मकाम अता किया है। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, ये वही सहाबी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़रे मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, यहाँ कौन है? ये किसके कदमों की आहट है? तो इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है? आपकी इस बात पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्स दिया था। हज़रत बिलाल हबशी की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वज़ू में रहता है वो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त मैं बावज़ू रहा, इसलिए मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब मैं बेवज़ू हो जाता फ़ौरन ही वज़ू कर लेता और जब मैं वज़ू करता तो फिर उसी वक्त 2 रकत नफिल भी अदा करता। यही वजह है कि हम चलते ज़मीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ए इंसान, याद रखना, आजमाइशों में भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, वो जो आजमाइश देता है वो आजमाइशों से निकालता भी है, आजमाइशों के बाद कामयाबियाँ भी देता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी रौनक आने लगे तो समझ जाओ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा, अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहता है, बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में इस इंसान से बड़ा पुरसकून और वकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम इस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और खुशी के आसार दिखाई देने लगे और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए इसकी ज़िंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, इसका वक्त बदलने वाला है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अता कर देता है। नंबर 5, इस इंसान के खर्चे में कमी आ जाती है, यानी खर्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसकी मालो दौलत में और इसके घर में बरकत अता फरमा देते हैं। पैसा और रिज्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, 5वीं निशानी ये है, जिस इंसान के खर्च में कमी वाक़या हो जाए और रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाए तो समझ लेना उस इंसान का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, इसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता, वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी जो इंसान हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला ही से उम्मीद रखता हो, इसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं करता और कहता है अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, जो भी करता है उस बंदे को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। फिर अल्लाह ताला जिब्राईल से कहते हैं, इसे मैंने अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को ये खबर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का महबूब बन चुका है। फिर 7 आसमानों के सारे फरिश्ते इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, ए लोगो,
फलां इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा है, तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करती हैं, लिहाजा तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो मोहतरम नाज़रीन, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक भी निशानी नज़र आ जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द इसका बुरा वक्त जाने वाला है और इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और इसके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम रखना चाहता है। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदे को कभी नहीं बुलाता, और जब एक बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह भी इसे अपनी याद में रखता है और इसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो हमेशा अपने बंदों के करीब रहता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी नूरानियत पैदा हो जाती है और हमारी ज़िंदगी में जैसे एक सुकून सा आ जाता है? तो जान लीजिए कि ये सुकून और ये खुशी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र ही से आती है। अल्लाह ताला अपना ज़िक्र करने वाले बंदे के दिल को अपनी रहमतों से भर देता है। फिर वो बंदा जो अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए इसका ज़िक्र करता है, अल्लाह उसे अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजता है, उसके दिल में एक ख़ास सुकून और इत्मीनान डाल देता है। अल्लाह की रहमत और उसके फजल और उसके एहसानों को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला की याद कुर्बत इलाही और मोहब्बत इलाही का एक अजीम ज़रिया है और ये चीज़ें भी दिलों के करार का सबब है। बल्कि हकीकत तो ये है, अगर ये कहा जाए तो यकीनन दुरुस्त होगा कि ज़िक्र इलाही की तिबी तासीर भी दिलों का करार है। इसीलिए जब एक परेशान हाल आदमी परेशानियों में अल्लाह का जिक्र करता है तो इसके दिल को करार आना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले मगर नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि दिल का सुकून मेरी याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो ज़िंदगी में भी सुकून नज़र आएगा। जो अपने दिल में याद खुदा बसाएगा तो वो रूहानी सुकून पाएगा। कुरान पाक में इरशाद इलाही है जिसका मफहूम ये है कि शैतान ने इस पर गलबा पाया और इसे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह के जिक्र से दिल को फेर कर इंसान को ऐसे गुनाहों की दलदल में फंसाता है कि फिर वो इंसान हमेशा के लिए गाफिल ही हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र ऐसे कसरत से करो कि लोग तुम्हें मजनून कहने लगें। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी संवारते हैं और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। इनकी शान में तो खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कौमों का हशर फरमाएंगे। इनके चेहरे पर नूर चमकता होगा, वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग इन पर रश्क करते होंगे और ये वो लोग होंगे जो इस दुनिया में अल्लाह ताला का खूब जिक्र करते थे। इस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है और उस माल से भी पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाइएगा कि जिसके लिए गिरे हों वही आपको उठाने से इनकार कर दे। इंसान का किरदार इस संदल के दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कुल्हाड़ी की ज़रब खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। जिस जंग में रिश्तों के हार जाने का अंदेशा हो उस जंग में हथियार डाल देना और शिकस्त को तस्लीम कर लेना ही असल जीत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुल्म से महफूज रखे और अदलो एहसान वाला रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमाए जिनकी तौबा को अपने फजलो करम से कबूल फरमाता है, उनके गुनाहों को अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। अल्लाह ताला हमारे पास हमारे पाक रब हमारे पास कोई अमल नहीं, हमें सिर्फ तेरी ही रहमत का आसरा है। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ फेर दे और हमें उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से बचाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।